Suhag Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is Bollywood singer with charisma, energy, and mesmerizing voice. Here I present Rex D'Souza. Hi Rex, how are you? I am good, Rashmi ji. How are you? Thank you I'm for having me on the show. good. Thank you so much for taking your time and being part of our show. And शुरुआत में चढ़ना चाहूंगी आपकी एक परफॉर्मेंस के साथ, एक आपकी हमारी लाइव परफॉर्मेंस हो जाए एक आपके गाने के साथ, बिकॉज आई नो यू आर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर who can really engage the crowd so well. So let Yes, our viewers absolutely, know your absolutely. talent worldwide. Absolutely, Rashmi ji. I'll start with a song with which actually I started my singing, my on-stage career actually. Sure, जिसके साथ मैंने शुरू किया था. One of my favorite songs you would of love to Udit ji, listen one to of my it. favorite Sure. singers from the movie Dil Se, ठीक है? Great. ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से. Wow. Thank you. क्या बात है, क्या बात है. वेरी नाइस राइट, योर लवली वॉइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छा गाते हैं आप, एंड आई नो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज this is the right time when you are with us, because you know, because of COVID-19 people are really stressed out, and I I would know they're all stressed out and ऐसी बात नहीं है. There's a lot of positive things to look at. Well, जैसे आप अभी स्टूडियो पे शोज कर रहे हैं for the viewers, right? आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, भले 2-3 लोग हैं, लेकिन आप लोग सारी मेहनत खुद कर रहे हैं. You're still in the studios in New Jersey, thank you. and that's an awesome thing कि आप लोग still entertainment का लोगों का घर पे ख्याल रख रहे हैं. That's an awesome thing. Yeah, and I would really like to thank our India media partner Akash from Asha Events, and उन्होंने like we have connected because of him, because you know it's a great bonding, और ऐसे ही है कि अच्छे कलाकार जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है. So you are a real inspiration, Rax. The way your journey has been, it's so inspiring. So I really want you to share your journey with our viewers. You know, they will learn so much. बहुत कुछ है आपके पास जो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. Absolutely. I would like to share these things. छोटी मोटी बातें हैं, but बहुत मैटर करती है लाइफ में. Because I started my journey. I used to sing from the age of 5, but वो 5 जब मैं 5 साल का था, I never sang like on stage. On stage, I began at the age of 16, if you ask me. Oh. So, जी हाँ, at the age of 16, that was the first time I sang. I still remember एक गणपति का पंडाल था in Mumbai. In a building, and someone booked me and बोला कि चलो आ जाओ. मुझे आज भी याद है, मुझे 30 रुपए मिले थे उसके. 3 घंटा मैंने गाना गाया था. And yes, I used to do a lot of shows. I used to do a lot of shows for गणपति की shows होते थे, जैसे गणेश चतुर्थी होती है या दिवाली होती है, तो लोग काफी बुलाते थे. That's where I started my journey in Mumbai. And फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्रेक मेरा था, I would say, is because one of the musicians who I used to sing with, जो मुझे ले जाते थे मेरे अपने shows में, he introduced me to Johnny Lever. Johnny Lever जी. जी हाँ, तो जॉनी लीवर का बहुत बड़ा ट्रूप हुआ करता था, and he used to do a lot of shows, like वो live shows काफी करते हैं, and he needed singers only for like 1 or 2 songs. Okay. So that's where he introduced me to Johnny Bhai, and Johnny Bhai was the first guy to give me a break, and मुझे आज भी याद है, it was so funny.
उन्होंने शो के बाद एक गाना गाया था मैंने पूरे शो में, एक गाना, क्योंकि उसमें और एक सिंगर था जो मेरे साथ में गाया था, कीर्ति सगाटिया, इज अ वेरी वेल नोन सिंगर, करसल सगाटिया के बेटे हैं, तो वो मेरे सीनियर सिंगर थे। तो मैंने एक गाना गाया था एंड उन्होंने मुझे 2,000 रुपए दिए थे, एंड दैट्स लाइक बहुत पैसा था 2,000 रुपए। तो मुझे शक हुआ था कि मैं बोला ये 2,000 मुझे दिया, तो मैं उनके जब पास जाके, आई स्टिल रिमेंबर बैक स्टेज मैंने पूछा था आफ्टर आई गॉट द पेमेंट, आई एम लाइक ये पैसे मेरे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मनी। और बाद में पता चला वो मेरे से मांगे कि भाई पैसे तो गलती से तेरे को दूसरे की पेमेंट आ गई। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग, इट वाज काइंड ऑफ फनी कि मैंने उनको जाकर पूछा था कि या आई वाज लाइक, आई आस्क्ड हिम कि भाई ये मेरे ही पैसे हैं, तो बोलता हाँ कम है क्या, मैंने कम नहीं बहुत ज्यादा है, तो मेरे को मेक श्योर करना था कि ये मेरे हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी, यस। एंड देन आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर एज वेल। मैं उस टाइम कॉल सेंटर में काम करता था, बिकॉज़ फाइनेंशियली आई वाज लाइक अ लोअर मिडिल क्लास गाय फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सो फाइनेंशियली आई वाजंट टू गुड, सो आई हैड टू वर्क 2 जॉब्स एज वेल। मैं कॉल सेंटर में भी नाइट शिफ्ट्स करता था, फिर रात को शोज करता था 9 से 12 के बीच, ऐसा भी किया है, वो वक्त भी निकाला है। बट इट्स अ वेरी गुड, इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी, यू नो। मैं अपनी जर्नी हर किसी के साथ में शेयर करता हूँ हमेशा, रश्मि जी, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। फेम गुरुकुल हैपेंड इन 2006, दैट वाज आफ्टर इंडियन आइडल 1 एक्चुअली, जिसके विनर अभिजीत सावंत थे। तो उसके बाद मैं वहाँ, तो 2006 में फेम गुरुकुल हुआ, लेकिन उसके 3 साल पहले एक्चुअली सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। आई यूज्ड टू स्लीप इन ट्रेन्स, इफ यू आस्क मी, लाइक 3 साल आई स्लेप्ट इन लाइक लोकल ट्रेन्स, मुंबई ट्रेन्स। And then I went to enter this audition, and in 6 months my life actually completely changed, you know. I went there, वो competition देखा, 6 महीने बहुत stressful था। It was very stressful if you ask me, कि 6 महीने अंदर रहना, every हफ्ते आपको evict होने का चांस होता है वहाँ पे, you could get evicted every week, so every week वो दिमाग में घूमता रहता है कि और एक हफ्ता, you know. And I never thought, if you ask me, जब top 12 में आया था, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि top finals तक जाऊंगा, top 3 में जाऊंगा, I never thought, but it was a great journey, and I did a few reality shows after that as well, और मैं shows तो काफी पहले से ही कर रहा था, so I love performing for everybody. I've done so many shows in New Jersey as well. I come there every year for Garba, you know, that happens. Pradeep Kothari ji ka jo Garba hota hai, I come there, and it's been पूरी दुनिया घूम लिया. I never thought I would be where I am, you know. मैं ये नहीं कहता कि I'm the biggest singer in India, but where I am today, I'm really thankful for whatever I am. Of course, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और मैं यही सोचती हूँ कि जीवन में संघर्ष जितना कड़ा है, जीत उतनी शानदार होती है, and you have done that. You are amazing. And I've seen आपके बैच में तो अरिजीत जी थे, and you were in the finalist, आप top 3 में थे. It's a very big thing, I will say. I know, it was actually बहुत कुछ उस टाइम सीखने मिला अरिजीत से भी। अरिजीत काफी छोटा था उस वक्त, अरिजीत 20 साल का था, और I think I was 24, yeah. Okay. So I was 24 at that point of time. So I still remember वो I was 23 actually, 23 I believe, 2006, yes, 23. Yeah. So I still remember that time, and we used to have fun together. बहुत सारी चीजें सीखते थे। उसकी आवाज काफी डिफरेंट थी उस वक्त, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत टैलेंटेड रहा है। आज वो जिस ओहदे पर है, आज भी हम मिलते हैं। उसका यूएस टूर था, तो वी मेट इन ऑरलैंडो, वी स्पेंड टाइम लाइक एक हफ्ता पूरा हमने साथ में बिताया। वी हैड सो मच फन, सो इट्स द सेम, ही इज सच एन ऑसम गाय। बहुत कुछ आज भी सीखने मिलता है उससे। उसने भी बहुत स्ट्रगल की है आफ्टर फेम गुरुकुल, बिकॉज वो टॉप 8 में आउट हो गया था, आई बिलीव टॉप 8, या जी हाँ, वो आउट हो गया था, तो वो जल्दी आउट हो गया था, तो he couldn't go through to the finals, but otherwise he's worked hard as well. हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से सजेशंस लेते रहते हैं। अभी भी बात करते हैं। कोविड में भी हमारा फेस टाइम हुआ था कि भाई तू कहाँ है, वो मुर्शिदाबाद में है इस वक्त, कोलकाता के से थोड़ा सा दूर अपने गांव में है। तो इज लाइक आई वांटेड टू स्टे विद फैमिली, तो इस लॉकडाउन में, इंडिया तो पूरा लॉकडाउन है। So yes sir, it was a great journey. I wouldn't say कि वो अरिजीत को मैंने उधर हरा दिया। काफी लोग कभी-कभी ऐसा बोलते हैं मुझे, which is kind of funny कि अरे यार अरिजीत तुम्हारे तो वो टॉप 6 टॉप 5 में था, तुम तो फाइनल तक गए थे, फिर अरिजीत प्लेबैक सिंगर बन गया। But I'm like, I always say this रश्मि जी to everybody कि देखिए, हर कोई किशोर कुमार नहीं बन सकता, उसी तरह से हर कोई अरिजीत सिंह नहीं बन सकता। नहीं, और सबकी अपनी पहचान है रेक्स, आपकी अपनी पहचान है। कोई भी Absolutely, हर किसी की नहीं बन सकता, मैं ये कहना चाहूंगी। ऑफ कोर्स आपने जो किया, और इट इज वेरी नाइस द वे यू हैव बीन कॉम्पीटिंग। आप कंपटीशन में जो जाते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे आ गए, आपका सिलेक्शन हो गया, दैट मीन्स यू आर विनर। दैट्स व्हाट आई फील, यू आर विनर। आप एब्सोल्युटली जस्ट ऐसे ही एक जेस्चर है, मतलब सब विनर, बिकॉज वो आवाज बहुत अच्छी होती है और अलग हटकी होती है, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पे। इट्स वेरी नाइस। इतने ऑडिशन के बाद होता है, and you had been continuing going through for so many
आप काफी उसमें गए हुए हैं, तो मैं वो भी जानना चाहूंगी कि आपने आफ्टर गुरुकुल क्या आपकी जर्नी रही। प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए प्लीज। जी एब्सोल्युटली। देखिए मैं तो हमेशा से, रश्मि जी आपने बहुत अच्छी बात की कि हर कोई अपने लेवल पर बनता है। देखिए अभी मैं अगर इमेजिन करूं कि मैं भी अरिजीत सिंह बन जाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता। अरिजीत सिंह की अपनी स्ट्रगल्स रही हैं, मेरी अपनी स्ट्रगल्स रही हैं। हर किसी का टाइम होता है, वक्त होता है। एंड एक्चुअली आई एम नॉट, आई ऑलवेज से दिस कि मैं कभी नाखुश नहीं हूँ जो मुझे भगवान ने दिया है। एंड वेयर आई एम, आई बीन परफॉर्मिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी यूएस में परफॉर्म करता हूँ मैं यूरोप जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, आई गो टू अफ्रीका, मैं इंडिया में जाता हूँ 7-8 बार साल में। सो आई एम नॉट अनहैप्पी इन एनी वेज, बिकॉज आई एम हैप्पी ऑन माई लेवल। हर किसी का अपना लेवल होता है। और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि अगर मैं सोचूं 10 साल पहले मैं कहाँ था, तो उससे तो मैं बेटर ही हूँ आज। मैं उस चीज को कंपेयर करता हूँ अपने आप से। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ टू अरिजीत सिंह या किसी और से कंपेयर नहीं करता, बिकॉज वो मुझे नाखुशी करेगी वो चीज। बट अदरवाइज यस एब्सोल्युटली। उसके बाद मैंने फेम गुरुकुल के बाद एक्चुअली मैंने के फॉर किशोर किया। एक किशोर कुमार के सॉन्ग्स का शो था, तो आई वाज अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद सोनी, सो दे वांटेड मी टू परफॉर्म फॉर अ फ्यू एपिसोड्स। तो वो मैंने किया, वो मेरी काफी अच्छी जर्नी रही। आई थिंक आई डिड 7 एपिसोड्स ऑफ दैट। इट वाज फैंटास्टिक टू सिंग किशोर दास सॉन्ग्स। मतलब बहुत अच्छा था, बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन माई आइडल, यू नो। मैं उनको हमेशा से फॉलो करता आया हूँ। तो हमें एक गाना सुनाइए आप किशोर दा का, देन वील कंटिन्यू विद दैट। ओ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्यों ना, डेफिनेटली एक गाना सुनाऊंगा। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ किशोर दा इज ओ साथी रे। मुझे वो गाना बहुत पसंद है। मुकद्दर का सिकंदर से वो जो गाना है, ये लीजिए। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वाओ, वेरी नाइस, लवली वॉइस रैक्स, बहुत बढ़िया। मतलब आई थिंक सो म्यूजिक इज समथिंग, इट हैज लाइक पावर, यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशन, डी स्ट्रेस योर सेल्फ। एंड आपको कितना अच्छी फीलिंग आती है इतना स्ट्रेसफुल टाइम में। मुझे लगता है आपके जो चेहरे पे ग्लो दिख रहा है उसी वजह से है, क्योंकि म्यूजिक म्यूजिक आपके साथ है। नहीं एब्सोल्युटली, सच बताऊं तो मैं अभी फेसबुक लाइव पर था जी सैटरडे को। वी डिड अ शो फॉर भारतीय सीनियर्स ऑफ शिकागो। हमारी कंपनी मनपसंद जो है, आईएनसी, भावना मोदी के थ्रू, जी। फ्रॉम शिकागो, शी लिव्स इन शिकागो। सो उनके थ्रू किया। मुझे इतनी खुशी हुई, आपको मैं बताना चाहता। रश्मि जी, सिंगिंग इज सच अ नाइस थिंग। इतना अच्छा लगता है गाने सुनकर, गाना गाकर। आपको मैं बताऊं कि मैं खुशी उसी चीजों में रहता हूँ कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों की, इतना ऑफ सारा प्यार कोर्स। मिलता है ऑनलाइन। देयर वर सो मेनी पीपल वाचिंग, एंड इतने सारे व्यूज मिलते हैं, इतना सारा प्यार, कमेंट्स आते हैं। दीज आर द थिंग्स आई ऑलवेज से, आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर। मैं भगवान से हमेशा कहता हूँ कि तुझसे तो मांगना ही छोड़ दिया है, जो तुमने दिया है, इतना सारा बहुत। प्यार लोगों से मिलता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट मेरे लिए, तो वो ही बहुत बड़ी बात होती है। ऑफ कोर्स, जो आपका गुरुकुल में व्हाट यू हैव वन मिस्टर गुरुकुल, दैट शोज दैट पॉपुलैरिटी यू हैव। तो मैं तो ये कहती थी कि मेरे लिए तो आप ही विनर है। नहीं एब्सोल्युटली। देखिए उसमें होता ही है कि विनर तो मेरा हमेशा से मानना है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुमको जीतना चाहिए था वो गुरुकुल, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ रश्मि जी, सीरियसली, जो जीता वो सिकंदर। कुछ नहीं ना नहीं, कुछ उसमें आप वो हमारे बात लिए तो होगी। आप जीते ही हैं। आप चाहे जो भी कहें, फॉर अस एंड फॉर माय व्यूअर्स यू आर द विनर, बिकॉज इट इज अमेजिंग। सी मिस्टर गुरुकुल इज लाइक समथिंग। एंड एंड ऑफ द डे जो सिंगर है, आप जब क्राउड में जाते हैं और क्राउड को एंगेज करना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, हर कोई नहीं कर सकता है। नहीं एब्सोल्युटली, वो आता है। देखिए वैसे ही होता है कि मेरे लिए वो बहुत वर्क किया, बिकॉज आई यूज्ड टू परफॉर्म विद सच नाइस पीपल, यू नो। जैसे मतलब बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ में, जॉनी साहब है, इम्तियाज अली है, मैं उनके साथ में परफॉर्म करता था। एंड दीज गाइज गिव मी दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि 16 साल की उम्र से स्टेज शोज कर रहा हूँ। तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस एक्चुअली व्हेन आई गॉट इनटू स्टेज शोज, लाइक रियल वाले जो मेरे शोज होते थे खुद के, रेक्स डिसूजा के, तो वो मुझे बड़े हेल्प किए कि क्या होना चाहिए, कि आपको क्या गाना चाहिए। आपको वो गाना चाहिए जो लोगों को पसंद है, ना कि जो सिर्फ आपको पसंद है। शोज में तो ऐसे ही होता है, जो फरमाइश होती है या आप यू हैव टू कीप। और बहुत हार्ड होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेक्स यार तुमको तो क्या है, तुम टीवी पे आए, अब तुम पैसे ले रहे हो, तुम्हारा क्या है, 3 घंटा गाना गाओ और तुम निकल जाते हो। इट्स नॉट दैट इजी रश्मि जी, एक्चुअली इफ आई आस्क यू। जैसे आप अब मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि
आप मुझसे ऐसे सवाल करें और मैं आपको ऐसे जवाब दूं कि आप जो आपके व्यूअर्स हैं उनको एंगेज रखें, राइट, Of टीवी course, पर of course, जहां पर भी आपको व्यू of कर रहे हैं. course. एंड दैट्स हार्ड, दैट्स अ वेरी हार्ड जॉब कि आप कैमरे के सामने आप इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, इतने अलग अलग लोगों का जिनको आप कभी कभी जानते भी नहीं है. आप और हम बात कर रहे हैं, आप मुझे जानते नहीं, लेकिन यू हैव टू ऑलवेज बी देयर विद अ स्माइल एंड Of मेक course. श्योर कि मैं कंफर्टेबल हूं. तो वो बहुत हार्ड जॉब है, हमारी जॉब काफी हार्ड है. एंड विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, उनको लगता है कि इट्स इजी मनी, यू जस्ट गो, आप ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में गए, होटल में सो गए, शाम को उठ के गाना गाया. नहीं, वो उन 3 घंटों में एक्चुअली रश्मि जी, यू हैव टू कीप द क्राउड एंगेज. आपको सिर्फ गाना नहीं गाना, तो गाना तो बहुत लोग गाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी देनी That होगी, is साथ साथ so में उनसे बात भी कर. Yes. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके शो में 1000 लोग हैं फॉर एग्जांपल, यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 900 बैठे रहें 3 घंटे course. तक. वो सबसे हार्ड जॉब है. That's a real star, of course, yes. And you are the best. एब्सोल्युटली. नहीं नहीं, बहुत, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आजकल के यूथ में दे जस्ट गिव अप कि ओके नहीं हो रहा, छोड़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट. इट्स नॉट लाइक इवन अरिजीत जैसे कि वो टॉप 8 में थे, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने कंटिन्यू किया जर्नी, इसीलिए वो वहां तक पहुंचे जहां आज है. आप यहाँ तक पहुंचे बिकॉज यू कंटिन्यूड इट, यू डोंट नेवर थॉट कि नहीं फर्स्ट ही. लोगों में सोच बहुत खराब है, जिससे मैं चाहती हूँ कि दे शुड नॉट डू दैट एंड दे शुड लर्न, एंड यू आर द रियल रोल मॉडल फॉर दैट. इट्स अमेजिंग. एब्सोल्युटली. जैसे अरिजीत की बात आपने कही, बहुत सही बात है कि उसके बाद भी उसने गिव अप नहीं किया. एक्चुअली आफ्टर फेम गुरुकुल उसकी स्ट्रगल और बुरी थी. Yes. 2012 तक, जब तक उसका तुम ही हो गाना नहीं आया था, ही यूज्ड टू वर्क एट प्लस स्टूडियो. वो 24 घंटे वही रहता था, वो प्रोग्रामिंग करता था. उसने बहुत स्ट्रगल की. लोगों को ये बात पता नहीं है एक्चुअली. लोगों को यही लगता है फेम गुरुकुल था, फिर अरिजीत ने तुम ही हो गा दिया, आज देखो वो करोड़ों रुपए कमा रहा. नहीं, इट्स नॉट दैट इजी. उसने जो वो 7 साल गुजारे हैं, दैट्स लाइक, मतलब वो हॉरिबल, उसकी जिंदगी की सबसे हॉरिबल 7 साल होंगे. जो मेरा अच्छा टाइम शुरू हुआ था जब आफ्टर द शो, वो 7 साल, बिकॉज ही डिडंट हैव, उससे फोन किया है हमें कितने बार कि हम, मेरे पास रेंट नहीं है. उसका 20,000 रेंट था, वो बॉम्बे में रहता था मलाड में. इज लाइक कि 20,000 मेरे पास रेंट नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं यार, मुझे बता कि मैं किस तरह से मैं शो में आ जाऊं, तू मुझे शो में कहीं ले जा, मुझे मुझे उधार मत दे लेकिन शो में ले जा. उस वक्त भी वो ही वाज अ बिग हार्टेड पर्सन. सो ऐसा नहीं है कि उसने कोई मेहनत नहीं की है. अरिजीत हैज वर्कड so hard, so hard for the last so many years he's been working in the industry. Of course, people know you for your charisma and energy also. तो आप movies में क्यों नहीं गए? The thing is actually नहीं, it all depends कि आपको क्या करना है. जैसे अरिजीत था, तो अरिजीत आफ्टर फेम गुरुकुल, he wanted to be a playback singer. He always wanted to be a playback singer. मेरी कुछ और प्रायोरिटीज थी. If you ask me, मैं frankly, मैं तो इसमें बिल्कुल शर्माता नहीं. The thing was, I was from a lower middle class family, so I was like यार पहले घर लेना है, पहले पैसे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे शोज कर रहे थे हम. We were doing a lot of shows right and left. हम ट्रैवल कर रहे थे. लाइक 2-3 साल फेम गुरुकुल के बाद, बिकॉज केफो किशोर किया, फिर जो जीता वही सुपरस्टार किया, सो टीवी पे पूरा वक्त थे. एंड आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ शोज में पैसा है ऑब्वियसली, लाइव शोज में. सो आई जस्ट वांटेड टू, मेरे को वो मेक श्योर करना था कि आई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लाइफ में एक ले आऊं पहले. आई वांट टू मेक मनी. सो मेरा वो था कि यार ये टाइम है, लेट्स कैश इन एंड लेट्स मेक सम मनी इन, रादर देन गोइंग एंड अभी स्ट्रगल करूं. तो मेरे को लगता नहीं कि दिस वुड बी द राइट टाइम, बिकॉज बहुत सारे शोज हम सोनी के थ्रू कर रहे थे एंड इट वाज अ नाइस टाइम. तो मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट थी. तो मैंने उस वक्त, मैं इफ यू आस्क मी, मैंने नहीं, जैसे अरिजीत ने एफर्ट डाला, बहुत एफर्ट डाला. उस लड़के ने राइट एंड लेफ्ट में, बोलता स्टूडियो के बाहर ही होता था वो, हमेशा होता था. एंड दैट्स द रीजन ही इज देयर. तो मैंने शायद उतना एफर्ट नहीं डाला. बट यस, डेफिनेटली प्लेबैक सिंगिंग समथिंग दैट, मेरी आवाज भी, इफ यू आस्क मी, मैं ऐसा नहीं गाता था जैसा आज गाता हूँ. आज जैसी आवाज मेरी मैच्योर हुई है, तो मैं भी ऐसा नहीं गाता था. तो धीरे धीरे आप सीखते हैं, आप रियाज करते रहते हैं जिंदगी, मतलब लाइफ में आगे जाके. और हमारा ये मानना है कि आप परफेक्ट कभी नहीं होते सिंगिंग में. यू कैन नॉट नेवर बी परफेक्ट. यू हैव टू, आपको रियाज करते रहना है, हर दिन गाते रहना है, और फिर जाकर ही आप कुछ बन सकते हैं. तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं रेक्स? मैम, इफ यू आस्क मी, मैं दिन भर ही मेरा रियाज चलता रहता है. इफ यू आस्क मी, क्योंकि मैं दिन भर, मेरे लिए रियाज वो है कि जब भी आप गाना गाओ, बेसिकली वो रियाज है. तो गुनगुनाते रहते, सिंगर्स का काम ही होता है कि दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गाते रहते हैं. तो बेसिकली वही रियाज होता है. हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं 3 घंटे, मेरे लिए वो भी रियाज ही होता है, बिकॉज you're still singing. रियाज इज सिंगिंग एक्चुअली. तो आपका किस तरह के गाने पसंद है आपको, रोमांटिक या सीरियस? ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड कि आपको रोमांटिक ही पसंद है, लेकिन आप वैसे पर्सनली क्या गाना पसंद करते हैं? वैसे किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं आपको? देखिए, इफ यू आस्क मी, मेरे को वो शोज बड़े पसंद आते हैं जहां पर मैं फरमाइशें पूरी कर सकूं. आई लव टू सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स. राहत फतेह अली खान साहब हो, या
उदित जी हो या किशोर दा हो या रफी साहब हो, आई जस्ट लव टू सिंग एवरीथिंग। अगर आप मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स की फरमाइश मांगे कि लाइक रेक्स तुम ये गा दो या रफी साहब का ये गाना दो, वो गा दो, मुझे बड़ा मजा आता है मुझे वो। लेकिन नॉर्मली हमारा ये होता है कि यू हैव टू ऑल्सो एंटरटेन पीपल। तो आखिरी के 1.5 घंटे जो होते हैं लोगों को, आप शादियों के शो करते हो, कॉर्पोरेट शो करते हो, पीपल वांट टू एंजॉय, दे वांट टू डांस एज वेल, सो उनको डांस करना होता है। तो यू ऑल्सो हैव टू गिव देम अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, यू नो। धमाल वाले गाने भी होते हैं जो डांसिंग नंबर्स होते हैं, यू ऑल्सो हैव टू गिव देम ऑल दैट एज वेल। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच। बट इफ यू आस्क मी, मुझे फरमाइशी गाने, रोमांटिक गाने, रफी साहब आप बोलो पुराने गाने, मुझे बहुत पसंद है। अरिजीत सिंह के सारे गाने, उदित जी के गाने, आई जस्ट लव देम। तो एक रफी जी का हो जाए फिर, एक आपकी पसंदीदा जो आपका फेवरेट है। जी, रफी साहब का भी एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है, आपके सामने गाना चाहूंगा। फ्रॉम द मूवी गाइड का है, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राही हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राही हम संग हैं। Lovely, lovely. Old is gold, of course, yes. कोई नहीं बीट कर सकता है, seriously. एब्सोल्युटली Wow. एब्सोल्युटली, ओल्ड इज गोल्ड। ये गाना जो है मेरी मम्मी कहती थी, वो बड़ा सुनती थी जब मैं उनके पेट में था। तो आई Actually, मे बी दैट्स द रीजन दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट रफी साहब of course. का नंबर। यस यस यस, आई लव दिस सॉन्ग। कौन सा एक्टर है अभी जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए अपनी आवाज दूं या मैं इसके लिए गाऊं? कौन है आपका फेवरेट एक्टर? मेरे फेवरेट एक्टर हमेशा से शाहरुख खान रहे हैं। शाहरुख खान, यस एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं एक फनी इंस्टेंस, इफ यू आस्क मी, Please. उनकी मूवीज आई थी ना, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, जी, वो जो एक जी। उनकी लाइन में मूवी आई थी, मोहब्बतें। तो Yeah. मैं तब बॉम्बे में, मुंबई में रहता था, और तब क्या होता था कि पैसे वैसे होते नहीं थे बिल्कुल, यू नो। और उनके, आपको याद होगा, कुछ कुछ होता है में उन्होंने वो जो हुडीज पहनते थे, वो टी Yeah, शर्ट्स पहनते yeah, थे, yeah. वो पता है, वो पोलो स्पोर्ट की। Yeah. तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वो देखकर इंस्पायर होता, मैं बोला यार ये वाली हुडी खरीदनी है। तो अंधेरी स्टेशन पर, इन मुंबई अंधेरी स्टेशन पर, ऑब्वियसली वो ब्रांडेड, तो पोलो स्पोर्ट की हम पैसे नहीं थे उतने, तो अंधेरी स्टेशन पर वो पायरेटेड जो होता था ना, पायरेटेड जो कपड़े मिलते थे, Yeah. वो पोलो यहाँ लिखा है, स्पोर्ट यहाँ लिखा है, तो मैं वो खरीद के उस गर्मी में, Wow. मुंबई की गर्मी What a में, fan. वो जिपर विपर पहन के, पोलो स्पोर्ट की, वो पोलो नेक की टी शर्ट्स पहन के घुमा करता था। क्या? एंड मेरी मम्मी बोलती, तू इतनी गर्मी में ये कपड़े, तू शाहरुख खान ने वो कपड़े पहने थे, स्विट्जरलैंड में पहने थे, वहां ठंड थी, वो शूट वहां हुआ है, तू बेवकूफ यहाँ क्यों पहन रहा है वो कपड़े? तो आई वाज लाइक, मुझे पसंद है, एंड आई यूज्ड टू डू दैट। मैं कॉलेज वैसे जाता था, तो लोग मुझे देख के हंसते भी थे कि तू कर क्या रहा है भाई, लेकिन दैट्स हाउ इट वाज, यू नो। मैं बड़ा इंस्पायर्ड था। कि आपको जल्दी गाना गाने मिले, वो भी शाहरुख खान के लिए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो बहुत मच। बड़ी फैन फॉलोइंग है रेक्स, तो आपको आज तक सबसे फेवरेट आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट है किसी आपके फैन ने दिया आपको? एक्चुअली मेरे को हमेशा से एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिलता है, मैं उसको डिनाई भी नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा से, जब से सिंगिंग शुरू की, मैं उदित जी की बड़ी कॉपी करता था। अच्छा। उदित नारायण जी की, जी हाँ, मैं बहुत कॉपी करता हूँ उनकी, और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं। हर किसी का, रश्मि जी, क्या होता है ना, जब शुरुआत करते हो आप, तो हर किसी का एक आइडल होता है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। उसको फॉलो करते हैं। सोनू जी ने रफी साहब को फॉलो किया था स्टार्टिंग में, तो Absolutely. मेरे हमेशा से उदित जी रहे हैं। उदित जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आदित्य जो है उनके बेटे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, तो हमारे बहुत अच्छे, मतलब बहुत, मैं वो भी बोलते हैं कि तू हमेशा से मुझे कॉपी करता था। मैं एक्चुअली करता हूँ, एंड मैं उसको डिनाई नहीं करता। मैं आई यूज्ड टू सिंग इन हिज वॉइस, मतलब मैं उनकी आवाज निकालने की बड़ी कोशिश करता था, जैसे वो गाते हैं। हाँ, वो जो भी गाना गाते हैं, तो मैं बड़ा गाता था, उनकी तरह ही गाता था। आई यूज्ड टू डू दैट, पूरा टाइम उनको मिमिक करने की कोशिश करता। तो पीपल यूज्ड टू टेल मी कि यार भाई तेरी आवाज उदित नारायण की तरह, पर हाँ, लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे। दैट वाज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यार उदित नारायण जैसी आवाज जिस दिन हो जाए, वो तो बात ही अलग हो जाए।
सीरियसली हाउ नाइस। तो आप उदित नारायण जी का ये दो लाइनें तो हमें उसकी भी सुनना चाहूंगी मैं, कि आप वो कैसे आप गाते थे, वी वुड रियली लाइक टू लिसन दैट। जी बिल्कुल, उदित जी का कोई भी गाना आप ले लीजिए, पहले तो होता है कि उनकी आवाज में ही स्माइल है, क्योंकि उनके चेहरे पे हमेशा वो हंसकर ही गाते हैं, वो सैड गाने को भी हंसकर ही गाते हैं, जी तो उनकी आवाज में ही बात है। तो जैसे एक गाना है और प्यार हो गया का, मेरी सांसों में, मैं वो गाता हूँ उनकी आवाज में। जी। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, हो तेरी याद हम सफर सुबह शाम, वाह। तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, हो तेरी याद हम सफर सुबह शाम। क्या बात है, मुझे लग रहा है सीरियसली उदित नारायण जी बैठे हुए और गा रहे हैं। नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम लोग हमेशा जब उदित जी की पार्टी वार्टी भी होती है तो वो मुझे हमेशा बोलता है तू मेरे सामने गा, और मैं डर जाता हूँ, मैं बोला उदित जी यार आप ये मत करवाओ, आप और कोई गाना बोलो, आपका गाना गाऊंगा तो आपकी सी आवाज निकलेगी, वो मैं आपके सामने नहीं कर सकता। ये इट्स काइंड ऑफ फनी, बट यस, मैं हमेशा से, एंड आई डोंट डिनाई इट रश्मि जी, मेरे वो, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, आई लव हिम, किशोर दा एंड उदित जी, हमेशा से वो रही है कोशिश, आई जस्ट लव हिज वॉइस, इट्स सच अ नहीं, ही इज फैंटास्टिक अ वेरी वॉइस। नाइस ह्यूमन बीइंग, आई नो वो बहुत अच्छे हैं, एंड जी जी। इट्स वेरी नाइस एंड यू हैव रियली डन जस्टिस। आप बहुत अच्छे से गाए, मुझे वाकई ऐसे लगा कि मैं उदित नारायण जी से ही शायद इंटरव्यू, उनसे तो नहीं चल रहा है। तो अभी आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, अभी आपका क्या चल रहा है नेक्स्ट अभी? अभी तो फिलहाल सारे वर्चुअल शोज ही चल रहे हैं। अच्छा जो अच्छा। आप किसी साइट पर जूम पर जाओ, या बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो करना चाह रहे हैं शोज, उनके लिए कर रहा हूँ। बस अभी कुछ टीवी एशिया पर इन द यूएस एक्चुअली कुछ बात चल रही है, देखते हैं वो आगे कैसे, कुछ वी डूइंग टू डू समथिंग, वी गोना डू समथिंग एंटरटेनिंग फॉर, देयर अ लॉट ऑफ सिंगर्स, यहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, जी जो ऑफ कोर्स। कुछ, जी हाँ, हर स्टेट में हैं। ऑफ कोर्स। सो दे आर ट्राइंग टू hook me up with some singers who want to learn something। मैं देखिए, मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि सिखाना और गाना दो अलग चीज़ें हैं, अच्छा गाना और सिखाना, तो मैं सिखा तो नहीं सकता, बट हाँ जी टिप्स दे सकता हूँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि साथ में कुछ गाना गाएं, I'd like to do, मैं ऐसा करना चाहूँगा। बहुत सारे हम चैरिटीज़ भी काफ़ी कर रहे हैं कोविड अच्छा। 19 के लिए फंड्स रेज करने के लिए, जी हाँ, सेवा इंटरनेशनल के साथ आई बीन डूइंग अ शो, या वी आर प्लानिंग अ शो विद देम, हर सेक्टर में, शिकागो हो, न्यूयॉर्क हो, ह्यूस्टन हो, अलग अलग ग्रुप्स हैं, सो दे वांट टू रेज मनी, सो वो भी कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो यही करेंगे, बट यहाँ बहुत सारे शोज वैसे प्लान थे, ट्रैवल था, आई वाज सपोज टू बी इन इंडिया दिस टाइम, बट गया नहीं मैं, बिकॉज ऑफ द सारे ट्रैवल्स ही कैंसिल हो गए, बट अदरवाइज यस, ट्राइंग टू दिस ईयर ऑल्सो, जो टीएम म्यूजिक इंडिया में लॉन्च हुआ, इफ यू डोंट नो, टीएम राइट। म्यूजिक, तारसेम मित्तल जी म्यूजिक, जी। अरिजीत सिंह के जो मैनेजर है उन्होंने हाँ अपनी म्यूजिक कंपनी, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वी आर लाइक प्लानिंग टू रिलीज अ सिंगल दिस ईयर। वेरी सो नाइस। उस, जी हाँ, उसका काम भी फिर इंडिया जब सब कुछ खुल जाए, वो ट्रैवल प्लान्स आप प्लान करके अहेड, और फिर इंडिया जाएं, फिर रिकॉर्ड करके, वी हैव सम प्लान्स, सो वो करना है। एंड शोज तो, ये शोज तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, Of शोज आर नॉट course, गोइंग टू and I स्टॉप, यस really एब्सोल्युटली। feel कि आप बहुत पॉजिटिव हैं and you are spreading so much of positivity actually, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, एंड दिस इज द टाइम वो सब भूल के सिर्फ आप पे ही ध्यान लगाएंगे कि रेक्स क्या गाना सुनाने वाले आज हमें। तो बिफोर वी एंड द शो, एक गाना मैंने आपका सुना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई वांट आप वो गाइए, आज की पार्टी मेरी तरफ ओ आज की पार्टी, अच्छा ठीक है, ये वाला से। है सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चांद को बोलो उतरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। आज की Superb, पार्टी एक्चुअली superb. रश्मि जी की तरफ से। Superb, Rex. Super. I should clap for you. It's amazing. Very nice. And I really enjoyed interviewing you, और because मैं खुद चाहती हूँ कि लोग सीखें, and Glam and Shine का मतलब ही है that behind the scene we want to bring out the work, that there's a lot of hard work, जी जिनके नाम है उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। So of course you should be inspired, but learn from them in a right manner and follow the path the way they have come through. Thank you so एब्सोल्युटली much, Rex. एब्सोल्युटली। But before we finish the show, any message for our viewers, please?
I'd like to say रश्मि जी, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू, ग्लैम एंड शाइन आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस शो पे मुझे बुलाया, एंड इट्स सो नाइस टॉकिंग टू यू, यू नो, इतना दिल ही नहीं कर रहा था कि ये खत्म हो, बट इट्स सच अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीपल, कनेक्ट विद यू गाइस एंड टू नो यू, एंड ऑल्सो सबको यही कहना चाहूंगा, पॉजिटिव रहें यार. I've been hearing a lot of negative things as well कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं. I think this is just a phase. ये भगवान ने हमको पनिशमेंट दी है बिकॉज वी थिंक दैट ये धरती यूनिवर्स हमारा है, हम चलाते हैं, नहीं हम नहीं चलाते हैं इसको ऊपर वाला एक सुपर पावर है जो चलाता है, एंड ही इज जस्ट गिविंग यू इशारा कि बॉस मैं चलाता हूँ एंड ना कि आप, एंड इट्स जस्ट अ फेज, 2-3 महीने की बात है. गाइज बी पॉजिटिव. आई नो एवरीवन's going through the same thing. It's not only you or me or anyone else. It's everybody. The whole universe is going through the same thing. So I think आप सभी को पॉजिटिव रहना चाहिए. 2-3 महीने का फेज है, निकल जाएगा. We'll get through this. और सब कुछ फिर से शुरू होगा, एंटरटेनमेंट से लेकर बिजनेस से लेकर सबकी जॉब्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैक. Thank you so much, and I always request all my viewers, please maintain your positivity, stay positive, and only be negative only for coronavirus. That's all. And thank you, Rex, for spreading this lovely message. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and looking forward to see you soon, and want to be at one of your performance ASAP. Absolutely, Rashmi ji. Pleasure to talk to you. Thank you so much. Thank you, Rex. Thank you. Stay safe. Stay home. Thank you.